Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says Huygens was the first scientist who proposed the idea of wave theory of light. He said that the light propagates in form of wavefront. A wavefront is an imaginary surface at every point on which waves are in the same phase. For example, a wavefront for a point source of light is a collection of concentric spheres which have a center at origin. W1 is a wavefront and W2 is another wavefront. We can see in the figure the radius of the wavefront at time t is ct. In this case, c is the speed of light. The direction of propagation of light is perpendicular to the surface of the wavefront. The wavefront are plane wavefront in case of parallel beam of light. So यहाँ पे we can see the diagram also. Huygens also said that every point on wavefront acts as a source of secondary wavelet. The tangent drawn to the secondary wavelet at a time is the new wavefront at that time. The wavelets are to be considered only in the forward direction, that is the direction propagation of light, and not in the reverse direction. If a wavefront W1 at time t is given, then to draw the wavefront at t plus delta t, take some point on the wavefront W1 and draw spheres of c delta t. They are called secondary wavelets. Draw surface W2 which is tangential to all these secondary wavelets. W2 is a wavefront at time t plus delta t. Huygens proved that the law of reflection and law of refraction using concept of wavefront. Certain plane wavefronts are shown in figure. The refractive index of medium is option A given at 2, option B given at 4, option C 1.5, option D cannot be determined. So to understand this question, we need to understand about the key concept of refraction of plane wavefront at plane surface. तो इसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, देन वी विल डायरेक्टली अप्लाई द रिजल्ट्स. सो लेट सपोज ये हमारा प्लेन सरफेस है, यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है. लेट सपोज उस वेव फ्रंट का नाम हम ले लेते हैं ए बी. ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. लेट सपोज ये एक प्लेन वेव फ्रंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. ये वेव फ्रंट है ए बी. ठीक है, अब जब ये स्ट्राइक करेगा सरफेस के ऊपर, तो लेट सपोज दिस इज द नॉर्मल. सो जब ये स्ट्राइक करेगा तो वी कैन सी जो ए वाला वेव है, यानी कि इस वेव को नाम दे, इस रे को नाम दे देते हैं पी, इस रे को नाम दे देते हैं क्यू. इस वेव फ्रंट में दो रेज है पी एंड क्यू. सो ये जाके स्ट्राइक करिए. सो पी वाली फर्स्ट स्ट्राइक करेगी. सो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा आई. ठीक, सो वी कैन सी जब ये स्ट्राइक करेंगे सो ये पॉइंट जो होगा ये हमारा लेट से कहला देते हैं बी डैश, ये पॉइंट कह देते हैं ए डैश. ठीक है, इसके बाद जो सिचुएशन होगी ये होगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, अब रिफ्रैक्शन होगा. ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे वी कैन सी दिस इज द रिफ्रैक्शन फिनोमिना हैव टेकन प्लेस. सो ये एंगल हो जाएगा हमारा आर. ठीक है, थोड़ा सा इसको हम, ये हो गया हमारा एंगल आर. एंड नाउ फर्दर वी कैन सी कि अगर हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पे, आफ्टर ये है हमारा इंसिडेंट ए डैश बी डैश, क्या है इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये क्या है हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जो क्या है हमारा पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं ये पॉइंट को हम दे देते हैं डी, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी. ठीक है, सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी if this angle is I, this angle is 90 minus I, so this angle is again I, right? अगर ये R है तो ये 90 minus R होगा, तो ये again R हो जाएगा. So this is what the situation would be. So from the diagram अगर हम triangle A dash B dash C की बात करें, तो यहाँ से sin I की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट अपॉन AC. ठीक है, एंड sin R की अगर हम बात करें डायग्राम में, so sin R को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज अपोजिट, दैट इज A dash D upon hypotenuse, that is AC. ठीक है, so from this two things we can say sin I sin R मिल चुका है हमें, तो इसका रेशियो अगर हम लेंगे, so we can take the ratio, that is sin I upon sin R will be equals to जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो होगा B dash C upon A dash D. ठीक है, कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा. अब ये जो B dash C है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो रे क्यू है वो बी डैश सी डिस्टेंस जो है लैग कर रही है, वो बाद में उतना टाइम, अगर लेट से बी डैश से सी पे आने के लिए उसने टाइम लिया टी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस इट विल बी ट्रैवलिंग. अगर हम मान ले कि ये हमारा एयर है या मीडियम 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग मीडियम 1, दिस इज अवर मीडियम 2. ठीक है,
तो यहाँ पे जितना उसको टाइम लगेगा, जितना वी कैन से बी, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, तो c इंटू टी लगेगा इसको यहाँ पे, ठीक है। एंड टू बी प्रिसाइज वी विल से इट एज टू बी c1t, जो भी स्पीड होगी इस मीडियम में c1 है, और इनटू टी। अब उतने ही टाइम में ये a डैश से d पे आ जाएगा रे क्यू, राइट। b डैश c पे आने के लिए टाइम t लगा, तो उतने ही टाइम में a डैश से ये रे कहाँ आ गई, d पे आ गई। सो दिस डिस्टेंस कैन बी रिटन एज c2 इंटू टी, टाइम सेम है दोनों में, तो ये आ गया c1 अपॉन c2। सो दिस इज हाउ वी राइट द वैल्यूज। अब यहाँ पे वी कैन सी कि ये c1 और c2 these are the speed of light in medium 1 and 2 respectively, ठीक है। एंड बाय स्नेल्स लॉ वी नो कि ये जो sin i by sin r होगा, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ mu2 by mu1। सो दिस इज द केस वी विल बी गेटिंग। सो यही चीज को अगर हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करें, सो वी कैन सी बी डबल डैश जो है हमारा, हम इसको लिख सकते हैं mu2, दैट इज वी कैन से, हमने mu2 को जो मीडियम है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमें बेसिकली वही फाइंड भी करना है। mu2 by mu1 कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हमारा था b डैश c, राइट, यहाँ पे होगा b डैश b डबल डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ था हमारा a डैश d, यहाँ होगा हमारा a डबल डैश, a डैश a डबल डैश, कुछ इस तरीके से, राइट। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी जस्ट वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, b डबल डैश का वैल्यू हमें 2 गिवन है, एंड इसका वैल्यू हमें 1 गिवन है, ठीक है। एंड वी नो के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ वैक्यूम, इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, राइट। सो वी कैन पुट द वैल्यू एज 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से mu2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ। सो ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।